Very good morning, students. I'm Murthy, your history teacher, going to teach you theme 2, writing and city life. In this theme, today we will read about life in the city. Today, my topic is life in the city, how people live in city in Mesopotamian civilization that was flourished in Iraq. So let me explain. What we have seen is that a ruling elite had emerged. Elite, what's the meaning of elite? Elite means educated, civilized, aware people, group of people that is known as elite group. Means elite group is had emerged. A small section of society had a major share of wealth. Mean they were well educated, they were traders, and they were civilized, they were well aware, having knowledge, they know how to earn money, and they have large amount of wealth due to their you can say efforts, their attempts, जो उन्होंने कोशिशें की उसकी वजह से उन्होंने काफी wealth इकट्ठा कर लिया. Nothing makes this fact as clear as the enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shells and lapis lazuli, ceremonial daggers, not degrees, it's a dagger. It's a type of knife. एक तरह का knife होता है, उसको daggers बोलते हैं. And its handle is made of gold. Clear? Knife, its handle is made of gold. Buried with some kings and queens at Ur. But of the ordinary people. Mean how we come to know that there was a ruling elite. There was a small section of society which are rich. Because we have proofs, we have evidences. Which one evidences? Their graves were discovered, their dig out, and what we found, what the historians found, they found different kinds of jewelry that was buried with them, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shells and lapis lazuli, and ceremonial daggers of gold. All these things are very expensive, and they were buried with them. Means whenever they died, these expensive, costly things are buried with them. That is the indicator that they were the elite group of the society. They were the rich. They were a wealthy people. Clear? We come to know through these, you can say, remains which we have discovered, which we have recovered, which we have found. मीन बेटे एक वहाँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में एक ग्रुप ऐसा था जो वेल्दी था, रिच था, पढ़े लिखे थे, सिविलाइज्ड क्लास थी, रिप्रेजेंटेटिव थे सोसाइटी के, वो व्यापारी भी रहे, उनके पास काफी वेल्थ था. हमें इस बात की पुष्टि कैसे हुई? उनकी कब्रों को खोदा गया. जब उनको खोदा गया तो उनके साथ हमें बेशकीमती, बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव आइटम्स मिली. जैसे मैंने बताया कि ज्वेलरी मिली, गहने तरह तरह के, गोल्ड वेसल्स, सोने के बने हुए बर्तन मिले, ये देखो मेंशन किया हुआ है. क्लियर? इसके बिना हमें जो क्या मिला? और वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लक्कड़ के बने हुए संगीत के जो साज हैं वो मिले. और आपको पता संगीत के साज काफी कॉस्टली हैं. इस उनके ऊपर इनलेड विद व्हाइट शेल्स लगे होते थे. क्लियर? मीन वो पूरी तरह डेकोरेटेड होते. लैप्स lazuli, काफी महंगा कॉस्टली ये पत्थर है, ब्लू स्टोन है, जो डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करते थे. सेरेमोनियल डैगर्स मिले हैं जो गोल्ड के बने हुए. तो इन चीजों को खोदने के बाद हमें पता चला है कि ये अमीर लोग थे. क्लियर?
ये देखो साफ साफ लिखा पड़ा है कि buried with some kings and queens at Ur. And where we have found these remains, we found all these things in Ur. What is Ur? You will ask. Ur is a city of Mesopotamian civilization. Famous city. Clear? बट वट ऑफ द ऑर्डनरी पीपल, ये तो हमने अमीर लोगों के बारे में जाना जो एलीट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। अब ऑर्डनरी पीपल की लाइफ कैसे थी ये भी हम जानेंगे, ये भी हमें उन रिमेन्स से मिला पता चला है जो हमें उससे मिली है। मीन उन रिमेन्स को स्टडी करके उन फॉसिल्स को स्टडी करें के हमें ऑर्डनरी पीपल की लाइफ के बारे में भी कुछ ना कुछ पता चलता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये क्वेश्चन है जो उसका आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है। क्लियर? हाँ जी, सबसे पहले मैं एक कीवर्ड बताना चाहती हूँ, दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली? कंप्राइज अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मीन जिसको हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, छोटा परिवार कहते हैं, तो ये अकेला परिवार कहते हैं जिसके अंदर माता पिता और बच्चे होते हैं। अ मैन, his wife and children, parents or grandparents, sister brother, they are not living together, वो इकट्ठे नहीं रहते। क्लियर बेटे? सो वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट कानूनन तौर पर जो किताबें लिखी गई हैं, डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस मैटर्स, क्योंकि कानून होते हैं ना, देयर आर लॉज के अनुसार ही डिसीजन लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है कि उसके लिए जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर थोड़ी सी फेरबदल करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्प्यूट, नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट। मीन उसके अंदर नई लाइंस ऐड कर देते हैं। तो ये लीगल टेक्स्ट हैं जो हमें मिली हैं मेसोपोटामिया, उसके अनुसार हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। सो we know from the legal texts that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm. Means these days mostly we have nuclear family, ज़्यादातर बच्चे और पेरेंट्स ही रह रहे हैं साथ साथ। आजकल भी ऐसा जो है देखने को आपको तथ्य सामने आएगा सोसाइटी में। आजकल जॉइंट फैमिली का जो समय है वो चला गया, जॉइंट फैमिलीज जो हैं नहीं हैं। आजकल सिंगुलर जिसको हम बोलते हैं सिंगल फैमिली, जिसके अंदर फादर, मदर और चिल्ड्रन रहते हैं। मेसोपोटामिया में भी उस समय सोसाइटी का कौन सा नाम था? न्यूक्लियरी फैमिली का। ज्यादातर कानून के अनुसार या जो प्रचलित रवायतें थी उनके अनुसार न्यूक्लियर फैमिली थी। Although a married son and his family often resides with his parents. पेरेंट्स अपने जो मैरिड सन है वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रह जाता था, कि कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि उसको अकेले ही रहना है। मीन्स ये साफ साफ लिखा हुआ है, although a married son and his family often resided with his parents, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। Like me, my husband and my child, we are living with our father and mother, हम अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। Clear? The father was the head of the family, and who was the head of the family? Father. पिता पुरखी जो है समाज था जहां पिता की बात मानी जाती थी, पिता डिसीजन लेता था। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय फादर। क्लियर बेटे? We know a little about the procedures for marriage. We are not having solid proofs regarding marriage system, but we have some ideas, some guess. A declaration was made about the willingness to marry. Means a young boy who's 18 years old, 20 years old and wants to do marry, he declared
I want to get married. I want to mean there was a declare ऐलान करता था कि मैंने शादी करनी है। किसको ऐलान करता था? ये नहीं कि पूरे समाज में ढिंढोरा पीटता था। मीन लड़की के घर में जाके उसके पेरेंट्स को ऐलान करता था कि आई वांट टू मैरी विद योर गर्ल, मैं आपकी बच्ची के साथ शादी करना चाहता हूँ। क्लियर? द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज। फिर ब्राइड जो है उसके पेरेंट्स दुल्हन के माँ बाप मान जाते थे, उनकी सहमति जरूरी थी। आज की तरह नहीं था कि लव मैरिज कर ली और घर आ गए। नो, दैट वाज नॉट कंसीडर। लेकिन जब पेरेंट्स मान जाते थे उस समय शादी हो जाती थी। देन अ गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड्स पेरेंट्स। तो आजकल तो हम दुल्हन से दाज मंगवाते हैं, गिफ्ट्स मंगवाते हैं। उस समय दुल्हन के लोगों को गिफ्ट दी जाती थी। दैट वाज द कस्टम। देन अ गिफ्ट, ये लिखा पड़ा है, वाज गिवन बाय द ग्रूम। ब्राइड ग्रूम कौन होता है? आपको पता, दुल्हन। और ब्राइड कौन होती है? दुल्हन होती है। क्लियर? तो ब्राइड ग्रूम वाले दुल्हन के पेरेंट्स को लोगों को गिफ्ट देते थे। क्लियर? व्हेन द वेडिंग, यस बेटे, when the wedding took place, gifts were exchanged by both parties, who ate together and made offerings in temple. फिर जब शादी हो जाती थी तो गिफ्ट एक्सचेंज होती थी। लड़के वाले लड़की के परिवार को गिफ्ट देते थे, लड़की वाले लड़की के परिवार को गिफ्ट देते। दोनों पार्टियां अपनी गिफ्ट्स को एक्सचेंज करती थी। इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे और टेम्पल में पूजा पाठ करते थे, जैसे आजकल करते हैं हम। सेम प्रोसीजर वाज देयर। लेकिन आज हम शादी में जो है डॉरी मांगते हैं, दाज लेते हैं लड़की वाले। उस समय दाज नहीं दिया जाता था। मीन डॉरी वाज नॉट अलाउड एट दैट टाइम। क्लियर? डॉरी सिस्टम नहीं था। When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. When her mother-in-law, जब सास अपनी बहू को लेने के लिए जाती थी तो दुल्हन का जो बाप था वो अपनी बेटी को अपनी जायदाद में से अपनी मर्जी से कुछ शेयर दे देता था। इट्स विश ऑफ द फादर ऑफ द ब्राइड। तो दुल्हन के पिता की इच्छा होती, डिमांड नहीं थी। मैंने कहा कि देयर वाज नो डिमांड, जस्ट वो अपनी मर्जी से देता था। द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एंड सो ऑन वाज इनहेरिटेड बाय द सन। और बाकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फादर की सन्स को मिलती थी। क्लियर? लड़की तो थोड़ा सा शेयर जो उसका फादर दे देता था अपनी मर्जी से, वो लेके आती थी। इसलिए आजकल में हम कैश, कार डायरेक्ट डिमांड करके मांगते हैं। डिफरेंस है बेटे, समझ रहे हो? मैंने कहा डॉरी सिस्टम नहीं था, मीन मांगा नहीं जाता था। फादर अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट कर देता था अपनी प्रॉपर्टी। क्लियर? सो लेट अस लुक एट उर। तो ये उर सिटी है। क्लियर? कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं हम? उर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैप है उसका उस सिटी का। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर? हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेट अस लुक एट उर। क्लियर? वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज टू हैव बीन एक्सकेवेटेड, जिस जो सबसे जो पुराना शहर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, मीन जितने पुराने शहर उनमें से एक है। ये प्रसिद्ध शहर है जिसकी हमने खुदवाई की है। तो यहाँ लिखा हुआ है उर वाज अ टाउन whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930s। 1930 में जो उर के आम घर थे, ऑर्डिनरी पीपल्स के घर थे, उनको सिस्टेमेटिकली खोदा गया, उनकी खुदवाई की गई सीरियल वाइज। तो हमने वहां क्या देखा? नैरो winding streets indicate that wheeled carts could not have reached many of the houses।
ये देखो कितनी नैरो लेन्स हैं, मीन तंग गलियां। इन नैरो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, विंडिंग स्ट्रीट्स, इस चीज का संकेत है कि जो व्हील्ड, व्हील्ड मीन पहिए वाले कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती थी जिनके चक्के लगे होते थे, व्हील्स लगे होते थे, वो आम घरों तक, बहुत ही घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। रीजन क्या है? रीजन बीइंग क्योंकि गलियां बड़ी नैरो थी, तंग थी, पीड़ी होती थी। आपके बुढ़लाडा शहर में देखो, वी हैव चौड़ी गली, उसमें तो आप 3-4 जो व्हीकल है इकट्ठे लेके जा सकते हो, लेकिन कुछ बुढ़लाडा में ऐसे भी नैरो लेन हैं जहां आप नहीं जा सकते। क्लियर? वहां सिर्फ साइकिल या पैदल ही जा सकते हो आप। तो ऐसे ही उस समय का हालात है। सैक्स ऑफ ग्रेन मीन अनाज के जो थैले थे, बोरियां थी, एंड फायर वुड हैव अराइव्ड ऑन डोंकी बैक, और जो ग्रेन्स हैं, ये रहा अनाज के जो थैले थे, या फिर ईंधन के लिए लकड़ी, वो घरों में चाहिए तो थी, जरूरत है इनकी, बोथ थी आइटम्स वर वेरी सिग्निफिकेंट इन वंस लाइफ, इंपॉर्टेंट वंस लाइफ। तो उनको, जो डोंकी होते हैं ना, आप समझ दो गधे, तो डोंकी बैक के ऊपर रख के घर में पहुंचाया जाता था, उन घरों में जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंचती थी, ड्यू टू नैरो स्ट्रीट्स। Narrow winding streets and irregular shapes of house plots also indicate an absence of town planning. And what you are watching here, the houses are not in a system, they are not systematically, टेढ़े मेढ़े, कोई कहाँ बना हुआ है, कोई कहाँ बना हुआ है, तंग गलियां हैं, टाउन प्लानिंग की एब्सेंस है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं, इरेगुलर शेप है घरों की, कोई किस तरफ बना हुआ है, कोई छोटा कोई बड़ा है। तो ऐसे में हमें क्या पता चल रहा है, उर्क जो सिटी है उसकी फीचर्स ये हैं कि देयर वाज नो रेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट, सेकंड देयर वाज नो टाउन प्लानिंग, थर्ड देयर वर नैरो विंडी स्ट्रीट्स, and one more thing, there were no street drains of the kind we find in the contemporary Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is a civilization, Harappan civilization. Mohenjo-daro is the city of Harappan civilization that flourished in India. That was a contemporary of a मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक ही साथ हुई है। इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये भी डेवलप्ड हो रही थी, ये भी डेवलप हो रही थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या थी? ड्रेनेज सिस्टम बड़ा यूनिक था। ड्रेनेज सिस्टम, यू नो, नालियां, नालियां बड़े अच्छे तरीके से बनी हुई थी, बट देयर इज अ लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम वेयर इन मेसोपोटामिया। क्लियर? यहाँ लैक ऑफ टाउन प्लानिंग थी, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम था, लैक ऑफ जो हम कहें बिग स्ट्रीट्स, तंग गलियों की बहुतात थी, चौड़ी गली अवेलेबल नहीं थी वहां उस समय, जैसे आपके बुढ़लाडा में। इसके उल्ट ये हर चीज प्रेजेंट थी कहाँ? हड़प्पा में। वहां टाउन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम यूनिक था, एंड यू नो बिग स्ट्रीट्स, ओपन स्ट्रीट्स, लार्ज स्ट्रीट्स वर अवेलेबल। तो बेटे ये फीचर्स हैं उर्क की कि वहां क्या था? ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ड्रेन एंड क्ले पाइप्स वर instead found in the inner courtyard of the Ur houses, and it is thought that the house roofs sloped inwards and rainwater was channeled by the drain pipes into sumps. इसके उल्ट वहां क्या था? जो उनकी घरों की रूफ्स होती थी वो कैसी थी बेटे? रूफ्स ऑफ दीज हाउस वाज स्लूप्ड, मीन जैसे हिली एरिया में होती है, तिल्सनी, फ्लैट नहीं होती थी हमारी तरह, टेढ़ी सी, तिरछी सी।
जैसे ये घर है, यहाँ बनाती हूँ, ऐसे ऐसे बनाइए था। मीन वेन एवर देयर इज रेनफॉल तो वाटर ऐसे नीचे आ जाता था, ऐसे ऐसे नीचे, वो ऐसे नहीं छत थी, ऐसे ऐसी फ्लैट नहीं थी, क्लियर, स्लूप्ड थी, जैसे हिली एरिया में होती है। एंड जो ड्रेन्स और क्ले पाइप्स हैं, ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स, नालियां, वो घर के अंदर बनी होती थी, वेड़े के विचकार। और ऐसे रेन वाटर भी जो है छत से वेड़े में आ जाता था। वेड़े में उन्होंने क्या बना रखा था, संप। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज संप, डूंगा टोआ खोदा जाता था, एक टैंक बनाया था कोर्ट यार्ड के अंदर, यहाँ वाटर को कलेक्ट किया जाता था। ये देखो लिखा पड़ा है, अ संप इज कवर्ड बेसन, ये देखो जैसे आप डंप होते हैं वैसे डस्टबिन होते हैं वैसे, अ संप इज कवर्ड, ये कवर्ड होता था बेसन इन द ग्राउंड इनटू व्हिच वाटर एंड सीवेज फ्लो, जहाँ गंदा पानी, नालियों का पानी, घर का जो फालतू पानी है, वेस्ट पानी है, वो जाता था। क्लियर, हर घर में ऐसे देखने को मिला है। क्लियर बेटे, इन द इनर कोर्ट यार्ड, मैंने बताया अंदर वाला जो इनर कोर्ट यार्ड था वहां बना हुआ था। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द paved streets from becoming extensive slushy after downpour। ऐसा क्यों किया गया था, ताकि जो शहर की गलियां हैं, अगर मींह पड़ गया तो वहां ज्यादा चिक्कड़ मट्टी हो जाएंगी, वो स्लशी हो जाएंगी। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने रेन के दौरान अपने घर के अंदर संप बनाए हुए थे। Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets to be trodden underfoot। इनके इसके बिना उन्होंने एक सफाई का क्या प्रबंध किया हुआ था, वो अपने घर को साफ सुथरा करते थे, और जो वेस्टेज होता था, लीटर कूड़ा होता था, उसको गलियों के अंदर फेंक देते थे। क्यों, टू बी ट्रोडन अंडरफुट, ताकि लोग उसको पैरों के नीचे लिताड़ दें। डाउन ट्रोडन में अंडरफुट, ट्रोडन में जिसके ऊपर हम चलते हैं। क्लियर, पैरों के नीचे वो लिताड़ा जाएगा। क्लियर, दिस मेड स्ट्रीट लेवल्स राइज, तो ऐसे में क्या हो जाता था, जब जहां खड्डे होते थे वहां वो कूड़ा चला जाता था, उसके ऊपर लोग चलते थे, तो वो स्ट्रीट क्या हो जाती थी, ऐसे में स्ट्रीट का लेवल जो है वो राइज होता था, फ्लैट होता था, साफ हो जाता था, मीन खड्डे खत्म हो जाते थे। एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ हाउसेस हैड आल्सो टू बी रेज्ड सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन। क्लियर, लेवल के बाद फिर जो फालतू का कूड़ा था उसको रिमूव कर दिया जाता था, ताकि रेन के दौरान वहां वो ज्यादा मडी ना बन जाए। क्लियर, light came into rooms not only from windows but from down doorways opening into the courtyards। जो लाइट की रोशनी का प्रबंध था उन्होंने वो कैसे किया था, दे आर नॉट हैविंग विंडोज इन देयर रूम्स, विंडोज से लाइट नहीं आती, उल्टा डोर, जो डोरवेज हैं, डोर्स, दे आर ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड, वो बेड़े की तरफ खुलते थे सभी के डोर्स, और वहां से रोशनी कमरे के अंदर आती थी। दिस वुड आल्सो हैव गिवन फैमिली देयर प्राइवेसी, साथ ही साथ में ऐसे में प्राइवेसी भी कायम रहती थी फैमिलीज की। क्लियर, क्योंकि वो गलियों की तरफ तो खुलते नहीं थे, बाहर तो कोई जो है विंडो नहीं थी रूम्स के, घर के अंदर जो वेड़ा होता था, वेड़े की तरफ रूम खुलते थे, डोर खुलते थे, जिसकी वजह से वहां प्राइवेसी भी मेंटेन्ड थी और रोशनी का भी प्रबंध था। क्लियर बेटे, देयर वर सुपरस्टिशंस, मीन दे हैव बिलीव इन मैजिक, जादू टूने में विश्वास रखते थे वो लोग, मीन वो सुपरस्टिशंस में विश्वास करते थे जब घर बनाते थे। कब, अबाउट हाउसेस, इन दीज डेज वी आर हैविंग सम बिलीफ इन सुपरस्टिशन, आजकल भी हम लोग विश्वास करते हैं जादू टूने में,
घर को नजर ना लग जाए तो हम वहां नींबू और मिर्चें जो है गेट के ऊपर टांग देते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई ब्लैक कलर का जो पॉट है उसको रख के उसको कुछ शक्ल बना देते हैं कि उसको नजर ना लगे। ये अलग अलग तरह के सुपरस्टिशंस हैं लोगों के। उस समय भी सुपरस्टिशन थे व्हेन एवर दे आर मेकिंग हाउसेस रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट्स। ये हमें कैसे पता लगा कि वहाँ सुपरस्टिशन थे? बिकॉज वी गॉट अ टैबलेट, हमें एक रिटन फॉर्म में टैबलेट मिली है जिसके ऊपर ओमन, ओमन में शगन और बदशगन के बारे में लिखा हुआ। क्लियर कि ये अपशगन है, जैसे कोई सीखता है हम कहते हैं अपशगन हो गया, इसने, मैं घर से बाहर जा रहा था अब इसने छिक मारी। या फिर हम जब चलते हैं तो बिल्ली रास्ता काट दे हम कहते हैं बुरा शगन हो गया। क्लियर? तो ऐसे में एक हमें टैबलेट मिली है, कहाँ? उर्स से, जिस सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर रिटन रिकॉर्डेड जो है सुपरस्टिशन है उनकी। अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉड वेल्थ, कहते जब कूड़े का ढेर होगा तो क्या आएगा घर में? रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉड वेल्थ, पैसा आएगा। क्लियर? दे हैव देयर ओन बिलीफ। अ फ्रंट डोर दैट डिडंट ओपन टूवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। मेन गेट जिसको हम कहते हैं या फ्रंट डोर है, मेन गेट या फ्रंट डोर, अगर वो किसी पड़ोसी के घर के सामने नहीं खुलता तो वो आपके लिए क्या है? लक्की है। अगर ये किसी और के घर के सामने खुल रहा है तो ये लक्की नहीं है। आजकल तो हमारे गेट आमने सामने ही होते हैं। क्लियर? बट इफ द मेन वुडन डोर ऑफ अ हाउस ओपन टू आउटवर्ड्स इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स, द वाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। अगर वुड का बना हुआ, उसमें वुडन डोर ही होते थे, जो वुडन डोर है ऑफ अ हाउस ओपन आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुलता है अंदर की तरफ खुलने की बजाय। आपने देखा ना आपके जो हमारे स्कूल के गेट हैं वो सभी आपकी क्लासों के अंदर खुलते हैं। क्लियर? कुछ गेट बाहर की तरफ भी खुलते हैं होते हैं। क्लियर? तो हमारे जो हमारे वॉशरूम है, गर्ल्स वॉशरूम है, उनके डोर आउटवर्ड्स हैं, जो क्लासों के डोर हैं आपके वो इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ खुलते हैं। क्लियर? कहते हैं जिसका घर का वुडन डोर आउटवर्ड खुलता है तो उसकी वाइफ क्या होगी? टॉर्मेंट होगी टू हर हस्बैंड, तंग करेगी, परेशान करेगी अपने पति को। क्लियर? ये अर्थ है इसका। देयर वाज अ टाउन सेमेट्री एट उर इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल फैमिलीज एंड कॉमन्स हैव बीन फाउंड। मीन हमें एक सेमेट्री, जिसको हम क्रमेशन ग्राउंड कहते हैं, वो भी मिली है जहां लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो हमें वहां ग्रेव्स मिली हैं, किसकी? रॉयल फैमिलीज की। क्लियर? एंड कॉमन पीपल्स की, दोनों तरह के लोगों की हमें क्या मिली है बेटे? ग्रेव्स मिली हैं, कब्रें मिली हैं। एक तो जहां अमीरों को दफनाया गया जो रॉयल फैमिली से हैं, राजा और उसकी फैमिली से हैं, और दूसरे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं। क्लियर बेटे? अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस, वो आम घरों की छतों के नीचे दफनाए गए। और ये हमने जो देखा है मैप, मैंने अपने को दिखाया रेजिडेंटल एरिया तुर्क का जहां लोग रहते थे। 2000 BC इसकी जो है एज बताई गई है, पुराना मीन डे। कैन यू लोकेट बिसाइड्स द विंडिंग स्टेज 2 और 3 ब्लाइंड एलीज? यहाँ 2 और 3 ब्लाइंड एलीज हैं, आपने उनको ढूंढना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? थैंक यू।